अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल मैथविबियन। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा बाउंडेड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम कैलकुलस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथविबियन सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन ही सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए। और मेरे फेसबुक पेज मैथविबियन को भी लाइक करें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें ज़रूरी रिमाइंड करनी है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के लिए। तो हमारे पास पहली डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ n, you know, 1 2 3 so on is known as natural numbers. It is also known as positive numbers, that is here integers. The set of I is equal to 0 to onward, 1 to 3, or 0 to backward, 0 minus 1 minus 2 minus 3 is known as set of integers. Rational numbers, all numbers of the form p over q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. Set of rational numbers is denoted by q. And here is also irrational number. These are numbers which cannot be expressed as quotations or quotients of integers such as ये numbers हैं square root 2 e pi etc. Set of irrational numbers is denoted by q dash. ये definition हमने clear की। नेक्स्ट हम इसको करते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स जो है हमारे पास ये कुछ union of rational numbers and irrational numbers are called real numbers. Real number is equal to r, denoted by r is equal to q union q dash, or a number where square is positive is called real numbers. These are some axioms of the real number system. So हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले। 1. The set of R is closed under the operation of addition and multiplication. The second one is two operations for addition and multiplication satisfy the commutative as well as associative laws. That is a plus b is equal to b plus a for all a b belong to real number. Commutative and associative is a plus b into c plus c is equal to a plus b into b plus a plus into b plus c for all a b c belong to real numbers are. Third is there is an element 0 belong to R with 0 plus a is equal to a. For all a belong to real number, O is defined as additive identity of real number. The 4 is for each a belong to R, there exist this sign is showing there exist a belong to minus a belong to R such that a plus into minus a is equal to 0 is equal to minus a plus a. The fifth one is a dot b is equal to b dot a for all a belong to b, a b belong to R. 6. A dot into b dot c, a dot b into dot c for R a belong to a b belong to R. Associative law. And the seventh one is there is an element 1 that is belong to R with 1 dot a is equal to a dot 1 is equal to a for all a belong to R. Is 1 is defined as multiplicative identity of real number. The eighth one is for each a belong to R that a is not equal to 0, there exists an element 1 over a belong to R with a into 1 over a is equal to a 1 over a into a is equal to 1, multiplicative inverse. नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ है ए डॉट इंटू बी प्लस सी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। If A, B, C belong to R and A is less than B, B is less than C, then A is also less than C, called transitive law. 11 is for all A, B belong to real number exactly one of the following: A less than B or B less than A or A is equal to B। ये देखें, ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे, कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। 12 is if A is less than B, then A plus C is less than B plus C for all A, B, C belong to R. If A is less than B and C is less than 0, then A dot C less than B dot C for all A, B, C belong to R. And the 14th is if A is less than B and C is less than 0, then A dot C is less than B dot C। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने रिमाइंड की है, आपने इसको फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लेकिन इस यूनिट के लिए कुछ इसको रिमाइंड करना जरूरी था तो हमने रिमाइंड किया। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बाउंड्स। दो तरह के बाउंड्स होते हैं, एक होता है लोअर बाउंड, एक होता है अपर बाउंड। हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, इनको समझते हैं कि ये होता क्या है। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, दैट इज ए एक्स बिलोंग टू आर, देन एक्स इज called lower bound of A if x is equal to or less than A for all A belong to A, small a belong to capital A. For example, if A is equal to close interval 0 1, then set of lower bounds of 0 to backward minus infinity. So हम इसे एक टाइम लाइन पे, नंबर लाइन पे हम डिपिक्ट करते हैं इसको 0 to 1, 0 and 1। द बैक डिजिट जो होंगे ना 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, दिस इज कार लोअर बाउंड्स ऑफ ए। अपर बाउंड क्या होगा? लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, एक्स बिलोंग टू आर, एक्स इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ ए इफ x is greater than or equal to A for all A belong to small a belong to capital A. For example, if A is equal to 0 to 1 close interval, then set of upper bounds of A is 1 to onward infinity। इस 1 को शामिल करते हुए अपवर्ड जाएंगे। तो ये हमें नंबर लाइन पे ये हमें नजर आ रहा है। देखो, इसको हम पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, इसको हम पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मींस कि ये इधर से तो जा रहा है, लेकिन ये क्लोज इंटरवल मींस कि ये 1 से पीछे नहीं जाएगा। बाउंडेड सेट क्या होता है? लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, सेट ए इज कॉल्ड बाउंडेड सेट इफ ए इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखें, इफ ए इज इक्वल टू 0 and 1 क्लोज इंटरवल, हमने ये एक लाइन बना ली, नंबर लाइन, 0 to बैकवर्ड, 1 to onward। तो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए माइनस इन्फिनिटी, 0 to माइनस इन्फिनिटी, हमने ये अभी पढ़ा है। सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, अभी हमने पढ़ा इसको। ए इज बाउंडेड सेट। तो ये दोनों कंडीशनों को, ये यानी कि दोनों को ही मिला रहे हैं हम, तो ए है बाउंडेड सेट होगा 0 से 1 तक। लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लीस्ट अपर बाउंड, हम लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी कहते हैं। लीस्ट अपर बाउंड का लीस्ट डिजिट जो होगा, लेट ए बिलोंग टू आर, लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम इफ सेट ए इज डिनोटेड बाय एम, कैपिटल एम इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड। ये आप LUB याद रख लें, लीस्ट अपर बाउंड, ये नेक्स्ट भी हम यूज करेंगे इसको। ए एंड डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए। ये लीस्ट अपर बाउंड ये होता है कि जितने भी हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारे अपर बाउंड में ए के, तो उसको हम कह देंगे लीस्ट अपर बाउंड। तो इफ हमारे पास क्लोज इंटरवल है 0 to 1, तो हमने ये डिफेक्ट किया, तो हमारे पास ये देखिए सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए
ये 1 से ऑनवर्ड है तो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 1 होगा, m इज इक्वल टू 1। आई होप कि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं लोअर अपर बाउंड क्या होता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, यानी कि लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, मैक्सिमम नंबर तक हम जाते हैं। तो लेट ए बिलोंग टू ए इज अ सबसेट ऑफ आर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम, you can call it infimum of set A, denoted by small m is equal to greatest least bound A and defined as largest number in set of lower bounds of A। ये है लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर को हम डिफाइन करते हैं इफ a इज इक्वल टू जीरो टू वन क्लोज इंटरवल। तो हमारे पास देखें सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ a होगा 0 टू ऑनवर्ड इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास वो 0 है, इसका ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड ये होगा, तो हमारे पास 0 है, तो m इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास दो कंसेप्ट, सुप्रीमम और इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ग्रेटर अपर बाउंड। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इफ a is equal to 1, 1/2, 1/3, 1/4 and so on, then find GLB and LUBA। हम इसको नंबर लाइन पे डिफाइन कर देते हैं, इसको 1 से ऑनवर्ड, जहाँ पे देखें 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो इस तरह से हम इसको लेके जा सकते हैं। ऐसे हमारे पास ये मौजूद है। सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए इज इक्वल टू, वी नो दैट 0 टू माइनस इन्फिनिटी, greatest least bound is equal to 0, which is equal to m, small m। set of all upper bounds of a is equal to 1 to onward positive infinity, lower upper bound is equal to 1, capital M, hence a is a bounded set। means to say कि ये देखें 1 और 0 के इन बिटवीन ये वैल्यूज आ रही हैं, तो दिस इज द, हमने इसको GLB भी फाइंड आउट कर लिया, LUB भी फाइंड आउट कर लिया, तो ये ए बाउंडेड सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल्स हैं इसकी। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू b, देन फाइंड GLB a LUB a। तो हमारे पास एक नंबर लाइन है, इस पे ए बी को ड्रा कर दिया, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, देन a इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ ए, वहां पे क्योंकि 0 था इसलिए हम 0 लिखते थे, यहाँ पे a है तो a से ऑनवर्ड माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे b होगा, वहां पे पीछे 1 था तो 1 लिखते थे, यहाँ पे b है तो b लिखेंगे टू ऑनवर्ड इन्फिनिटी। तो GLB क्या होगा हमारे पास a, LUB ऑफ a क्या होगा हमारे पास स्मॉलर b। तो हमारे पास ये GLB ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड भी हमने निकाल लिया और लोअर अपर बाउंड भी निकाल लिया हमने, तो ये है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, if a is equal to x such that x is greater than a and less than b, then find GLB of a and LUB of a। here a and b are in open interval। कैसे पता लगा, क्योंकि x जो है वो a से लेस है और a से ग्रेटर है और b से लेस है, मींस टू से ये इन दोनों के इन बिटवीन है, x जो है a और b के इन बिटवीन है। तो हम कहते हैं सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ a इज इक्वल टू होगा a टू ऑनवर्ड माइनस इन्फिनिटी, सेट ऑफ अपर बाउंड जो है हमारे पास b टू इन्फिनिटी। तो हमारा लोअर अपर बाउंड ये है। इसको लिखने का मेन मकसद ये था कि ये हमें बता रहे हैं कि ये शो डेफिनेशन शो कर रही है कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन b, सो दैट इनको हमने ओपन इंटरवल में लिखा, हमने क्लोज इंटरवल में नहीं लिखा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये है for a set s is equal to x such that x square is less than 2, show that lower upper bound is s is equal to square root 2। अब हमने square root 2 को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी। लोअर अपर बाउंड इज इक्वल टू m होता है, देन इधर m जो हमारे पास है या तो वो लेस देन इसके होगा, एक केस ये स्क्वायर रूट 2 के, या लेस देन हमारे पास होगा या ग्रेटर देन होगा स्क्वायर रूट 2 से, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज लेस देन ये हो जाएगा हमारे पास। और या तो हमारे पास m इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट 2 के। तो हमने इन तीनों केसेस को प्रूव करके हमने अपना रिजल्ट निकालना है।
सपोज m is less than square root 2, then by method of arithmetic mean, हम यहाँ पे arithmetic mean method अप्लाई करते हैं। हमारे पास है अरिथमेटिक मीन है m प्लस वो दोनों वैल्यूज को सम अप करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो पहली कंडीशन में m इज लेस देन दिस और दिस, ये जो वैल्यू है हमारे पास लेस देन स्क्वायर रूट 2। सिंस बाय 1 हमारे पास इसको हम ले सकते हैं यहाँ से m प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 इज लेस देन 2, और हम ये जो हमारे पास वैल्यू है m प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 इज बिलोंग टू s, लोअर अपर बाउंड जो हमने लिखा हुआ है। Also by 1 m is less than this value, so this shows that जो कैपिटल M है is not equal to or greater to this value, so this ये जो है हमारा कंट्राडिक्ट हो जाएगा। this contradict the fact m is equal to LUBS, hence m is not less than square root 2। तो सेकेंड देखते हैं हम। नाउ सपोज करें m इज ग्रेटर देन 2 हमारे पास, देन हमने क्या करना है, m इज ग्रेटर देन दिस एंड ग्रेटर देन दिस, हमने अब इस कंडीशन को अप्लाई कर लिया। अब यहाँ से हम लेते हैं m प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 इज लेस देन 2, सो m प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 इज अपर बाउंड ऑफ s, ये तो अपर बाउंड है। आल्सो m इज ग्रेटर देन दिस, m इज बिगर अपर बाउंड ऑफ s देन m प्लस स्क्वायर रूट 2, ये जो m है हमारे पास बिगर अपर बाउंड होगा इसका। तो ये LUB इज नॉट, अब ये यहाँ पे ये हमने लिख लिया, तो लोअर अपर बाउंड s इज नॉट इक्वल टू m हमारे पास। देन क्या 10 हमारे पास क्या है, m इज लेस देन नॉट लेस देन 2, सो फ्रॉम a एंड b, ये देखें हमने a प्रूव किया था ये, और b प्रूव किया हमने ये, दोनों देखें आप, ये जो है नॉट लेस देन 2 और नॉट ग्रेटर देन 2, तो a एंड b के रिजल्ट से हमने ये डिड्यूस किया कि m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यू नो दैट कि हम मैथ में सारी अजम्पशंस पुट करते हैं, सो हमने अजम्पशन की बेस पे इसको क्वेश्चन को लिया। नेक्स्ट यूनिट में हम इंशाल्लाह करेंगे लिमिट, नेक्स्ट में इसमें मैं करवाऊंगा आपको लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट, सारा इसमें मैं नेक्स्ट में करवाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, तो इसको मैं आगे आपको सारा करवाऊंगा। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ये इनिशियल था, इससे आगे हम एडवांस चलेंगे। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। इंशाल्लाह वेरी सून विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।